Very good afternoon to all. Yes, I'm audible to all ना. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. हम लोग का कल लेक्चर था क्या? क्या सर? कल हम लोग का लेक्चर था? नो सर. Today is first lecture after your term examination, ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Okay, okay, good. So how was the exam? कैसा हुआ? हाँ? सर बढ़िया हुआ सर. बढ़िया हो गया. Good. Very good. Okay. So when you prepare your midterm examination, so do you have any type of question where you feel yes, you are not comfortable in that particular areas? Yes. Or if anybody is having any more questions, right? Then or a problem in particular question, then simple send me that question ताकि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए, है ना? तो किसी भी तरह से प्रॉब्लम हमारी कुछ भी उसमें रहनी नहीं चाहिए. Everything should be मतलब an understandable form, right? So in the first unit, we cover all these topics. So this is the syllabus of first unit, right? And in the second unit, the thing that we discuss, the rest part of the normalization. In first unit, we discuss up to the third normal form or BCNF, and here we discuss after the BCNF, the dependency preserving, fourth normal form multi-value dependency, fifth normal form joint dependency, and inclusion dependency, right? So these topics are left uh, from the normalization that we will cover over here, right? So after the completion of the normalization, we'll discuss the file organization. Then after we'll discuss the transaction processing, recoverability, concurrency control, and distributed. So this is the whole syllabus that we are going to discuss throughout the semester. अब आगे जितना भी हमारा time बचा, right? Now today, uh, in last term, I think up to non-redundant cover or canonical cover, we have already solved, right? See, what happened from the first term or from the beginning in normalization. I told you number of time in normalization, the first, the functional dependencies must be clear. Functional dependencies must be clear. Second, you must know the closure set of attribute. How to find closure set of attribute. Then you must know how to calculate the candidate key, right? And then fourth part, you must know the after candidate key. What we'll discuss? We discuss over there the redundant cover of F. Redundant cover of F. Then after we discuss cover of F. See over there. If you not understand the functional dependency, then you will not able to understand the closure. And if you not understand the closure, not able to find out the candidate key. Not knowing all these topics, then not able to find out the redundant cover. Not knowing redundant cover, then you will not able to find out the canonical. So from the beginning, I told you there is a sequence of all topics, right? So every topic must be clear to you. Because if there is any problem in any topic, then you will be not able to understand the next topic, right? So is there any problem in these topics to anybody? Yes. Is there any problem to anybody in these topics? Yes, I'm audible to all. Na? हेलो Hello. सर. टॉपिक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
राइट बट सर प्रॉब्लम ये है कि सर जब एसक्यूएल में हम लोग यूज कर रहे हैं तो सर ओरेकल पे हम लोग बनाते हैं कोई भी डेटाबेस। राइट। बट सर मैं सोच रहा था कि जब हम लोग अपने लैपटॉप में कोई वर्क करते हैं तो सर उसमें डेटाबेस बनाने के बाद कैसे उसे कनेक्ट करें, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जैसे कि मैं एक ऐप बनाया हूँ तो सर सोचता हूँ कि उसमें डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है, तो बट फायरवॉल वो हो नहीं रहा है। हाँ तो देखो, उसके लिए क्या लाइव है, प्रैक्टिकल सर कुछ। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। उसके लिए अभी क्या है, राइट नाउ यू आर इन थर्ड सेमेस्टर, है ना? अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हो। थर्ड सेमेस्टर में आप क्या कर रहे हो? थर्ड सेमेस्टर में यू नो द बेसिक ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? यस In सर। fourth semester, not in fourth semester, in fifth, after the fourth semester, there is a industrial training for you. आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे, 1 मंथ का करोगे। उसके बाद थर्ड ईयर से आपके प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाएंगे। तो उन प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल तुम जो कह रहे हो कि हाउ टू रिलेट द फ्रंट एंड विद बैक एंड, यस सर। because at this moment of time you are not comfortable with any front end, right? So that you, yes, is a genuine question ke sir how we can relate it. So for that what you can do, you can design a small projects or मतलब as far as my सर opinion, जैसे कि सर मैंने एक लॉगिन पेज बनाया था सर, यूजर लॉगिन पेज था वो, उसमें पहले रजिस्ट्रेशन कराया मैंने और मैंने उसे डेटाबेस से कनेक्ट भी किया। तो किस जो फ्रंट भी एंड में, किस इंफॉर्मेशन में यूजर। फ्रंट एंड क्या लिया था आपने? सर फ्रंट एंड पे मैंने बनाया था वेबसाइट पेज बनाई HTML से। हम्म। और देन मैंने उसमें यूजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम लॉगिन जो भी सर होती है राइट राइट राइट। इंफॉर्मेशन, वो मैंने डेटाबेस में स्टोर तो करा लिया। हाँ और मेरे डेटाबेस में सारी वैल्यू स्टोर हो गई। बट मैं ठीक है। चाहता हूँ कि यूजर के लॉगिन करने के बाद वो उसकी इंफॉर्मेशन को आउटपुट पे रिजल्ट दे, बट वो हाँ, डिस्प्ले नहीं हो पा रहा सर। ये सारी चीज तुम अभी आगे प्रोजेक्ट्स में बनाओगे, फिफ्थ सेमेस्टर में तुम्हारे सारे ये आएंगे, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम ये कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके लिए तुम क्या करो, तुम नेट पे सर्च कर लो कि हाउ टू कनेक्ट विद डेटाबेस, राइट? यस सो फॉर दैट क्या होगा कि आपकी डेटाबेस से जो भी रिपोर्ट है, अभी जैसे आगे हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में भी जो भी रिपोर्ट्स जनरेट होके आ रही हैं, वो सारी रिपोर्ट्स आपके फ्रंट एंड में आ जाएंगी। ठीक है, यस तो ये कनेक्टिविटी वाला पार्ट डोंट वरी अबाउट दैट, आगे आप पढ़ोगे। अभी आप क्या कर रहे हो, मैं सिंपल, बहुत तुम्हें सिंपल एनालॉजी दे रहा हूँ, व्हाट यू आर डूइंग एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, यू सिंपल लर्न द टेबल, 2 2s यस are सर। 4, 2 3s are 6 and so on, like that. बट वेयर यू हैव टू अप्लाई, ये तुम्हें अभी आगे जब पढ़ोगे, जब आगे, अब जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो अगर तुम्हें टेबल्स नहीं याद है तो तुम्हें कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इट विल टेक मोर टाइम, यस है ना? सर। तो वही चीज है कि अभी आप बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद आपका जब प्रोजेक्ट आप डिजाइन करोगे तो प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी आपका फ्रंट एंड बैक एंड की, वो कनेक्टिविटी आपकी हो जाएगी, राइट? ओके सर। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके। सो हियर, after the canonical cover, the topic over here is the first is lossless decomposition. Lossless decomposition. Then after आपका topic is dependency preserving. See, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये सब हमारे क्या है, ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड वाली चीजें हैं। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, तो ये तो हम यहाँ पे करेंगे, इधर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम थ्योरेटिकल की बात करें तो थ्योरेटिकल में अप टू मतलब एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म, व्हाट वी डिस्कस ओवर देयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड BCNF, अप टू BCNF वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ओवर देयर। अब यहाँ पे हमारा जो होगा, यहाँ पे हमारा इस टर्म में जो चीज डिस्कस होगी, इस टर्म में हमारी जो चीज डिस्कस होगी वो हमारी क्या होगी, एक तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होगी, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होगी, जॉइंट डिपेंडेंसीज होगी, और फिफ्थ नॉर्म, एंड द लास्ट इज इंक्लूजन डिपेंडेंस, इंक्लूजन डिपेंडेंस। तो ये पूरा पार्ट हमारा नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन का अभी हमारा रह रहा है
that we have to discuss over here. And after completion of this topic, we will just discuss this transaction processing system. This is transaction processing system, then the recoverability, then the concurrency control, and then the introduction to distributed. So this is all about the syllabus that we have to discuss over here, right? So today I'm just going to discuss this lossless decomposition with you, right? So can anybody tell me what is the simple meaning of lossless decomposition? Simple lossless decomposition का मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे? सिंपल लॉसलेस डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो, देखो, जैसे ये है कि आपकी ये देखिए, ये आपकी रिलेशन आर गिवन है, ए बी सी डी ई, और इस आर में ये सेट ऑफ एफ डीज गिवन है कि ई डिटरमिन ए, सी डी डिटरमिन ई, बी डिटरमिन डी, ए डिटरमिन बी सी, ये आपकी एफ डीज गिवन है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, इज दिस डिकम्पोजिशन, विच डिकम्पोजिशन? R1 आपका है ए बी सी और R2 आपका है ADE. Is this decomposition is lossless or not? So what is the simple meaning of lossless? Don't think about the database management system over here. What do you think about simple the meaning of lossless? Yes. Can anybody tell me? A relation R is given, relationship is given. On the basis of relationship, we just decompose it into ABC and ADE. So can anybody tell me what is the simple meaning of lossless? Yes? Yes? The information will not get decomposed and we will get it. When we decompose, then there is no loss of data. Simple the meaning is that, lossless. कि मेरी जो रिलेशन R थी, R को A B C D E को मैंने डिकम्पोज करा। डिकम्पोज किस पे करा? ऑन द बेसिस ऑफ दीज एफडीज। ये एफडी है, इन पे बेस मैंने ये डिकम्पोज करा। अब ये जो डिकम्पोजिशन मेरा आया है, ये डिकम्पोजिशन मेरा लॉसलेस नहीं होना चाहिए। मतलब लॉसलेस है या नहीं है, ये मुझे चेक करना, राइट? इसको चेक करने का मैं स्टेप 1 बाय 1 स्टेप्स में डिस्कस करते जा रहा हूँ। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम एनीवेयर, वहीं मुझे स्टॉप कर देना कि सर रुक जाइए, ये बता दीजिए, राइट? सर ये हमारे लैब में है क्या? ये लैब में बेटा, लैब में मींस मतलब अभी तो सर हमारी लैब की क्लास है, डेटाबेस लैब की। आज आपकी लैब की क्लास है क्या? यस सर। एक मिनट बेटा, तो तुम लोग इतनी देर से बता क्यों नहीं रहे हो? कौन सा सेक्शन है? सर सेक्शन जी है। अरे बेटा, अच्छा ये लैब है क्या? यस सर। Yes, sir. तो फिर आप लोग क्यों नहीं बता रहे हो कि सर लैब की है ये? मैं तो सोचा हूँ ये थ्योरी मुझे चल लगा रहा कि सर आप नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो सर कुछ Yes, बता sir. रहे होंगे। है। चलो तो कोई नहीं, थोड़ा ये इंटरेस्टिंग सा लग रहा था टॉपिक, तो हमने पढ़ लिया। है। थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा था टॉपिक। अरे तो बताना चाहिए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये आपकी थ्योरी है। एक मिनट बेटा, नहीं लैब का नहीं है, बिल्कुल नहीं लैब का है। लैब में आप लोग क्या कर रहे थे अभी? मैंने तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप लोग उसमें क्या कर रहे थे। अच्छा, इस सर सेक्शन लैब में सर एक्सपेरिमेंट नंबर 6 चल रहा था। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 एक्चुअली हुआ क्या है कि आफ्टर फर्स्ट टर्म मुझे कुछ नई क्लासेस भी मिली हैं, तो मैं उसी कंफ्यूजन में रहा कि ये और नई क्लास मुझे मिल गई है। अच्छा, सेक्शन जी में मेरी लैब चलती है, ओके गुड। हाँ तो बताओ, लैब में क्या चल रहा था? असाइनमेंट 6 चल रहा था सर। असाइनमेंट 6 चल रहा था। तो असाइनमेंट 6 क्या था? सारे हो गए थे या कुछ बचा हुआ है असाइनमेंट 6 में? नो सर, स्टार्टिंग के बस थोड़े से हुए थे, जो उनमें किया हुआ था आपने कैसे रन करा के चेक करो। असाइनमेंट 6 इज एक मिनट, जस्ट वेट। I think assignment 6 is based on your functions, na? If I'm not wrong, right? यस सर। है ना? एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग तो मतलब बिल्कुल बोले ही नहीं थे। मैं ये सोच रहा हूँ कि
चलना अभी तो टॉपिक ही खत्म हो जाता। आप लोग की क्लास में कौन पढ़ा रहे हैं? सर लेक्चर तो सौरभ आनंद सर लेते अच्छा, हैं। सौरभ सर। सिक्स, गुड। तो हाँ बिल्कुल, सिक्स हमारा जो असाइनमेंट था, आप लोग के पास सिक्स असाइनमेंट है अभी? यस, do you have six assignment with you at this Yes, point of sir. time? Okay, so हाँ, in six assignment, in the last lab I'd given you one assignment. क्या मैंने दिया था? Yes, in last lab we discuss about you कि मतलब मैं अब चीजों को कोरिलेट कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई मुझसे अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि सर लैब में कैसे इसको करेंगे, है ना, लैब में क्या चीज करेंगे, फॉर्म वाली ना। अब मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, ठीक। तो लास्ट लैब में मैंने आप लोगों को दिया था कि ये सारे आप रन करके देख लीजिए। तो आई होप आप सबने ये सब रन करके देख लिए होंगे, है ना? तो अब इसके बाद फिर शुरू कर दो असाइनमेंट। फर्स्ट असाइनमेंट से ये वाला, यस दिस वन, ये शुरू कर दो, फिर क्या दिक्कत है, करिए। ओके इसमें से सर। कितने कितने हो गए थे इसमें से हमारे? सर अभी क्वेश्चन तो एक भी नहीं हुआ था। क्वेश्चन एक भी नहीं हुआ था, तो शुरू करो, बिल्कुल करो इसको, करो इसको। और अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो बताओ। फर्स्ट क्या कह रहा है ये? फर्स्ट ये कह रहा है क्रिएट अ न्यू कॉलम डीओबी इन स्टूडेंट टेबल, ठीक है। DOB in student table. That means जो student table, हाँ. Before that, what you have to do, you just create these three tables: student, apply, and college, right? So for that, these three tables, the script is given over here. So simple, you can Control C and Control V. पता ही है, आप लोग पहले करते आ रहे हो। तो वो क्रिएट करने के बाद आपका जो फर्स्ट है, वो फर्स्ट ये है क्रिएट अ न्यू कॉलम DOB इन स्टूडेंट टेबल। करिए। न्यू कॉलम के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं? इफ यू वांट टू डू द चेंजेस इन टेबल, इन स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, देन बाय व्हिच कमांड वी कैन डू द चेंजेस? यस, बताइए। सर अल्टर यूज करते हैं। ऑल्टर कमांड यूज करते हैं, वेरी गुड। तो ऑल्टर कमांड को यूज करके बताइए क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, ऑल्टर कमांड को यूज करके बताइए क्या होगा। यस, व्हाट इज द कमांड? ऑल्टर कमांड का क्या रहेगा? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। यस, आई एम ऑडिबल टू ऑल ना? Yes, I'm audible or not? Yes, yes, sir, you are audible. Okay, beta. Then what is the answer to the first query? Add DOB in student table. इसका पहला आंसर क्या, मतलब आंसर क्या होगा इसका? यस बच्चों, आस्था गुप्ता, आस्था गुप्ता, आस्था गुप्ता is there? Yes, Astha Gupta is there. Not there. Class 10, class 10.
Yes, beta, what is the answer? सर हो जाएगा अल्टर टेबल Good. स्टूडेंट Alter table student. Good. एड DOB Alter table student add DOB, right? हाँ. और सर इसका डेटा टाइप हो जाएगा varchar तो DOB का डेटा टाइप क्या होता है? डेट का डेटा टाइप क्या होता है? सर डेट का इंटीजर डेटा टाइप varchar ले है? सकते हैं सर नहीं बेटा, ले तो सकते हो, but if you take the varchar, the data type of date, then you can insert. Yes, I'm agreed with you. But if you want to perform the date function, तो वो डेट फंक्शन आप varchar लेने के बाद परफॉर्म नहीं कर पाओगे. Like if you want to know the age of all employees or all student, want to know the experience or want to calculate the age, then you are able to calculate that, right? So don't take the data type varchar. In the place of varchar, what you can take, you can take the data type date. Is it clear? ओके सर तो उसका जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप डेट. ओके सर चलो गुड. सेकंड करिए. सेकंड देखिए क्या है. तो बिल्कुल इसका जो कमांड हुआ वो क्या हुआ? अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड डीओबी डेट. अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड डीओबी डेट हुआ बेटा? करके देखिए जैसे अपने सिस्टम पे. यस, करके देखिए. अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड डीओबी डेट, तो करके देखिए आप लोग. राइट. Yes. Alter table student add DOB date. बेटा हुआ? यस सर हुआ। Okay. Second आपका क्या है? Second आपका है insert DOB for each student in corresponding table using above instances of student table. ठीक है, करिए. अब ये किस कमांड से होगा? अपडेट स्टूडेंट सेट DOB is equal to कोई डेट where SID is equal to 1 2 3, है ना? 1 by 1 सारा एंटर करते जाओगे. बेटा देखो, मैंने पहले भी कहा था आप लोग नहीं करोगे तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा. प्लीज डू इट. अपडेट स्टूडेंट. प्रशांत बेटा अपना माइक ऑफ कर लो, है ना? हाँ. अपडेट स्टूडेंट सेट DOB इज इक्वल टू कोई भी डेट, सपोज 26 जून 96 लिख दिया सिंगल क्वोट्स में, वेयर SID इज इक्वल टू जो फर्स्ट SID टेबल में थी कौन सी थी? 1 2 3 थी. 1 2 3 हुआ बेटा? यस. यस. ओके. थर्ड पे आ जाइए. थर्ड आपका है फाइंड द एवरेज ऑफ GPA राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस. फाइंड द एवरेज ऑफ GPA राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस. अब अगर सिंपल एवरेज GPA निकालना हो तो हम क्या क्वेरी लिखते थे? सेलेक्ट ABG ब्रैकेट में GPA फ्रॉम टेबल नेम. सिंपल क्वेरी इज दैट. बट अगर हमें फायर करना है कि राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, तो राउंड फंक्शन एक होता है तुम्हारा, उसको क्या कर सकते हो? लिखोगे सेलेक्ट राउंड ब्रैकेट में एवरेज GPA, एवरेज ब्रैकेट में एवरेज ब्रैकेट में GPA ब्रैकेट क्लोज कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम स्टूडेंट. करिए. यस. यस सर हो गया.
ये होगा, यही लिखा है, select round AVG GPA Yes, from sir. student, है ना, right? Good. Now come to the fourth. Find year of DOB of student having less than 1000. करिए, fourth करिए, fourth assignment. ईयर ऑफ DOB आपको एक्सेप्ट करना है, जिसका साइज HS लेस देन 1000 है। करिए, यस हुआ? ये रहा, ये सेलेक्ट SIT एक्सट्रैक्ट क्या कर रहा है? एक्सट्रैक्ट करना है ईयर, कहां से? DOB से। DOB इज ऑलरेडी गिवन इन द टेबल। ईयर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर साइज HS लेस देन 1000। रन करिए इसको। यस, रन करिए बेटा। हो रहा है? सर ये एक्सट्रैक्ट हमने क्यों यूज किया है? हाँ बेटे, ये एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट क्यों? क्यों यूज किया? आपको क्या बताना है? आपको इसमें बताना है फाइंड ईयर ऑफ DOB। ईयर बताना है। DOB आपने के में क्या दिया था? DTMMYY। भाई Yes, डेट sir. दी थी, मंथ दिया था, ईयर दिया था। एंड व्हाट यू हैव टू डिस्प्ले ओवर हियर? यू हैव टू डिस्प्ले द ईयर ओनली। So from the DTMMYY to extract the year, there is a function extract, EXTRACT, extract. So Okay, select sir. SIT, extract, अब ब्रैकेट में क्या हुआ? ईयर फ्रॉम DOB। तो ये आपको क्या कर रहा है? ईयर एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है, कहां से? DOB. DOB से, राइट? फ्रॉम, बाकी तो सिंपल है, कोई Yes, दिक्कत है ही sir. नहीं। इज इट क्लियर? Yes, sir. गुड। कंप्यूट एज ऑफ स्टूडेंट, फिफ्थ करिए। कंप्यूट एज ऑफ स्टूडेंट, कंप्यूट एज ऑफ स्टूडेंट करिए। कंप्यूट एज ऑफ ईच स्टूडेंट। यस, अब देखिए, एज ऑफ ईच स्टूडेंट के लिए आप या तो ये फायर कर दीजिए, यस, ये, या तो ये फायर कर लीजिए, एज ऑफ ईच स्टूडेंट। सेलेक्ट SIT extract year from sysdate, year from sysdate minus extract year from DOB। अब ये क्या हुआ? दोनों ईयर का लिया सिस्टम डेट से। आज की सिस्टम डेट क्या है? सिस्टम डेट है 22/10/2020। तो 2020 से माइनस कर देगा क्या? ईयर, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? सपोज 2002, तो 2002 माइनस कर देगा, माइनस करके एज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. Clear. is it clear? Now, in the place of this one, in the place of this one, you can fire this query also. Kya? Select SID, comma. There is one function, months underscore between.
So I hope everybody know the meaning of this. Months between क्या करेगा बताओ? What is clear from its name? Yes. What is clear from its name? What is the purpose of this months between? Yes. सर वो मंथ की बॉन्डिंग कंडीशन में आएगा मंथ कि मंथ कर देगा, मंथ काउंट कर लेगा. Months between क्या? sys date comma DOB. अब ये क्या करेगा? अब ये एक्चुअल सिस्टम डेट और सिस्टम डेट क्या है? 2210-2020 माइनस DOB कर देगा क्या? जो DOB आपकी उसमें डेटाबेस में है, ये दिस फ्रॉम टेबल नेम. अब टेबल नेम आपकी क्या है? टेबल नेम आपकी स्टूडेंट है. अब इसमें एक चीज देखिए, इसमें आपके क्या आएंगे? मंथ्स आएंगे. मंथ सपोज आ गए 444, 456, 456.23 लाइक दैट. अब उसको ईयर में करने के लिए हम क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 12 कर देंगे. अब बात समझ में आ गई कि क्या होगा? ईयर में आ जाएगा. इज इट क्लियर? यस. यस सर. हाँ, अब ईयर में आएगा तो क्या आएगा? 22.645678 9 10 करके इस तरह करके आएगा. डेसिमल के बाद बहुत प्लेसेस तक आएगा. तो अब हम इसको क्या करें? इसको हम राउंड कर दें. तो ROUND राउंड ब्रैकेट दिस कॉमा 1 यहाँ तक राउंड करते हैं. तो अभी हमारा जो है मतलब डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस वाला उसको राउंड करके ये ईयर डिस्प्ले कर. Is it clear to all? Yes. Is it clear to all? यस सर. Okay. Now, if the query is display the experience of all employees, or an employee date of joining is there, then how you'll be able to find out? Yes. 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 Yes, बेटा. अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी है, DOJ दिया है, और मैं एक्सपीरियंस कह रहा हूं, तो एक्सपीरियंस को आप कैसे निकालोगे? सर करंट डेट में ज्वाइनिंग वाली डेट को माइनस कर देंगे. बिल्कुल. सेम क्वेरी में आप क्या करोगे? सेम क्वेरी में आप इन द प्लेस ऑफ DOB यू कैन राइट द DOJ. इज इट क्लियर? यस सर. Is it clear? Good. Now come to the sixth पे आओ. Sixth करो. Sixth पे आओ. Yes. Sixth करिए बेटा. Sixth करिए. Yes. ये तो अपर लोअर आपने करा हुआ है. बोलिए. यस सर. इसमें सर हो जाएगा फटाक से सिलेक्ट अपर एंड नेम बेटा थोड़ा सा ध्यान दो. 2 चीज डिस्प्ले करनी है. एक टेबल से एक है और एक टेबल से एक है. तो क्या करोगे? सर एक कॉलेज भी है. कॉलेज भी डिस्प्ले करना ना. तो आपका ये हो जाएगा, है ना? Select upper s.s name, comma lower a.c name from student table से. अब ये क्या s को कर रहा है? s कर रहा है. स्टूडेंट की जगह एलियास ले लिया है s.
इसीलिए यहाँ पे देखो s डॉट एस नेम लिखा है. सिमिलर ओवर हियर अप्लाई ए. अब अप्लाई लिखने के बजाय इसने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ए लिख दिया है, ए डॉट सी नेम. नेचुरल ज्वाइन दोनों. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes. यस सर. Okay. Now come to the seventh. Find fourth alphabet of each student. Yes, इसको करिए. अच्छी क्वेरी है. Find fourth alphabet of each student. सर ये तो स्टूडेंट के नेम का फोर्थ अल्फाबेट होगा ना? Sorry बेटा. ये जो सर फोर्थ अल्फाबेट लेना है, मैं स्टूडेंट नेम से लेना है ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. From the student name. बिल्कुल बिल्कुल. सब STR से होगा. मैं पहले ही हिंट दे रहा हूँ. करिए. सब STR से होगा. करिए बेटा. सर यहाँ पे ये हो सकता है सेलेक्ट सब STR एस नेम कॉमा 4 फ्रॉम स्टूडेंट. एस नेम 4 स्टूडेंट आ रहा है. देखो करता हूँ सर. करो. All these are the non-redundant, non-restricted. Yes. क्या रहा है बेटा? सब STR एस नेम कॉमा 4 फ्रॉम स्टूडेंट से. हाँ बेटा, क्या आ रहा है? यस. सेलेक्ट सब STR ब्रैकेट में एस नेम कॉमा 4 फ्रॉम स्टूडेंट. इससे क्या आउटपुट आ रहा है? सर फोर्थ से लेके लास्ट तक का वो आउटपुट आ रहा लेके है. लास्ट तक का आ रहा है. आपको क्या बताना है? फोर्थ वाला. फोर्थ वाला. तो 4,1 करो. 4,1 करो. 4,1 करो. यस सर, अब हो गया. अब हो गया. तो Yes, sir. ये कौन सा था? 7th था ना. अब Yes, 8th करो. 8th करो. 8th. 8th क्या है? 8th है find SID and S name of student whose S name has string length. अच्छा, name string greater than 3. राइट. चलिए करिए. नेम स्ट्रिंग के लिए आपका क्या होता है? आपका इसमें होता है क्या लेंथ होता है. लेंथ एक फंक्शन होता है. राइट. तो करिए.
ये तो एकदम इजी सा है, लिखो सेलेक्ट SID कॉमा एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर लेंथ एस नेम लेंथ ब्रैकेट में एस नेम ग्रेटर देन 3। सेलेक्ट एट्रीब्यूट्स लिख लो फ्रॉम टेबल नेम वेयर लेंथ ब्रैकेट में एस नेम ग्रेटर देन 3। हुआ? यस बेटा हुआ? यस सर। ओके, अब बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, बल्कि नेक्स्ट में क्या आप लोग करिए, नेक्स्ट में जो नहीं आएंगे वो हम डिस्कस नेक्स्ट sir. लैब में कर लेंगे, राइट? ओके सर। इज इट क्लियर टू ऑल? है ना? ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर।